Hello, friends. Welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day of May 27th. So, the first topic is related to census. This topic was covered in the Hindu newspaper on page 1, and it is relevant for General Studies paper 2 Polity section. The headline says only 6 religion options make it to the next census form. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया सेंसस फॉर्म डिजाइन करा है जिसके कुछ फीचर्स हैं दैट इट रिटेन्स 6 ऑप्शंस फॉर रिलीजन्स. इट इंट्रोड्यूसेस क्वेश्चंस ऑन बॉटल्ड वाटर कंजम्पशन एंड माइग्रेशन ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज. इट विल बी इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस अलाउइंग सिटीजंस टू पार्टिसिपेट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम. New queries about travel time and metro rail usage have been added. And this census also includes categories such as acid attack, intellectual disability, chronic neurological disease, and blood disorder in the disability section. A code directory is also added to streamline data process. हमारा next topic है sedition के बारे में. सेडिशन के ऊपर एक एडिटोरियल आया द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 6 में, जो जनरल स्टडीज पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है. तो इसके की फैक्ट्स पढ़ लेते हैं. Firstly, Section 124A of Indian Penal Code of 1860 deals with the offense of the sedition. Section 124A sedition को define करता है वो words either spoken or written which attempts to bring hatred or contempt against the government established by the law. And इसकी जो punishment है वो है life imprisonment. Famous freedom fighters like Bal Gangadhar Tilak, Annie Besant, Maulana Azad, and Mahatma Gandhi have been charged for the offense of sedition by the British government. In 1962, the Supreme Court in Kedarnath Singh versus State of Bihar upheld the constitutional validity of Section 124A of IPC. Next topic है हमारा कार्बन टैक्स के ऊपर. ये द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 9 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए रिलेवेंट है. नाउ रिसेंटली यूरोपियन कमीशन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म साइन करा है. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू अवर्ट कार्बन लीकेज. अब कार्बन लीकेज क्या है? इट रेफर्स टू अ फिनोमेना वेयर अ यूरोपियन यूनियन मैन्युफैक्चरर मूव्स कार्बन intensive production to countries outside the region with less stringent climate policies. ये जो मैकेनिज्म है ये 2026 से फुली इंप्लीमेंट होगा. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज काफी कंसर्न है इसको लेकर, इंक्लूडिंग इंडिया. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो गगनयान मिशन के रिलेटेड है. ये हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है. नाउ इंडियन नेवी एंड Indian Space Research Organization recently released the Gaganyaan Recovery Training Plan at the Water Survival Training Facility at INS Garud in Kochi. इसके अंदर एक ह्यूमन फ्लाइट लॉन्च करी जाएगी इन 2024. उससे पहले 2 अनक्रूड मिशन लॉन्च करे जाएंगे 2023 में एंड 24 में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर पॉल्यूशन के रिलेटेड. ये हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है. और इस न्यूज का क्रक्स ये है कि दार्जिलिंग इज अबाउट टू बिकम वन ऑफ द most polluted cities of West Bengal. Already there are 6 cities in West Bengal which do not meet the national ambient air quality standards. These are Asanol, Durgapur, Kolkata, Havra, Haldia and Barakpur. इन cities का जो PM10 का जो concentration है that exceeds 70 micrograms per cubic meter of air which surpasses the Indian standard of 60 micrograms per cubic meter. अब हम particulate matter यानी PM की बात करें, so these are extremely small solid particles and liquid droplets suspended in air. PM10 refers to particles with a diameter of 10 micrometers or less. These particles are small enough to pass through the throat and nose and enter the lungs. And PM2.5 refers to particles with a diameter of 2.5 micrometers or less. Next topic है हमारा डांसिंग गर्ल स्टैचू के बारे में. ये इंडियन एक्सप्रेस के पेज 13 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 कल्चर के लिए रेलेवेंट है. काफी कंट्रोवर्सी है इसको लेके, तो इसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. सो रिसेंटली ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे व्हिच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर on May 18, Prime Minister Modi inaugurated the International Museum Expo in Delhi. And इसका जो मैस्कॉट था वो था डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो. उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था जिसे चन्नपटना टॉयज की फॉर्म में अनवील करा गया था. नाउ डांसिंग गर्ल है क्या? इट इज अ प्री हिस्टोरिक ब्रोंज स्कल्पचर मेड इन लॉस्ट वैक्स कास्टिंग इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी ऑफ मोहनजोदारो. ये स्टैचू को एक्सकवेट करा गया था 1926 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मैके ने, और प्रेजेंटली ये स्टैचू आपका नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. इससे रिलेटेड हम चन्नपटना टॉयज के बारे में बात कर लेते हैं. ये जो टॉयज है ये मैन्युफैक्चर करे जाते हैं चन्नपटना टाउन में इन द रामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला हुआ है एंड ट्रेडिशनली द वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टॉयज इन्वॉल्व्स द लैक्यूरिंग द वुड ऑफ द Rhytia tinctoria ट्री which is also known as Alemara ivory wood. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपोसैट. ये इंडियन एक्सप्रेस के पेज 13 पे आया था एंड जनरल स्टडीज
पेपर 3 के साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। इस न्यूज की ब्रीफ समरी ये है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज बेस्ड इन बैंगलोर उसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है टू बिल्ड द एक्सपोसैट विच स्टैंड्स फॉर एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। ये इंडिया की फर्स्ट एंड वर्ल्ड की सेकंड पोलैरीमेट्री मिशन है विच इज मेंट टू स्टडी वेरियस डायनेमिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज इन एक्सट्रीम कंडीशन। जो वर्ल्ड का पहला ऐसा मिशन है वो है नासा's इमेजिंग एक्सरे पोलैरीमेट्री एक्सप्लोरर IXPE that was launched in 2021। इसकी कुछ और डायमेंशंस जो आप पढ़ सकते हैं वो है हाउ आर एक्सरेज विटनेस्ड इन स्पेस एंड व्हाट आर एक्सपोसैट्स पेलोड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर द जुडिशरी। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। ये जो इनिशिएटिव है ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर at district and subordinate courts. It is a centrally sponsored scheme. इसका जो फंड शेयरिंग पैटर्न है वो है 60:40 between center and state in general, 90:10 for 8 northeastern states and 2 Himalayan states and 100% central funding for the union territories. और आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारा पैसिव फंड्स को लेके। ये मिंट न्यूज़पेपर के पेज 16 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। नाउ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI will come out with a mutual fund light regulation for passive funds. Passive funds होते क्या है? It is an investment vehicle that tracks a market index or a specific market segment. These funds include passive index funds, exchange traded funds, ETFs and funds of funds investing in ETFs. So friends, ये आज की हमारी important headlines of the day थी। I hope आपको पसंद आई हो। For various updates on current affairs, you can follow us on social media platforms like YouTube, Instagram and Telegram. Thank you.